मॉर्निंग स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th के इंग्लिश फर्स्ट का लेसन 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द किंग एंड द स्पाइडर, यानी राजा और एक मकड़ी। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस लेसन की रीडिंग करेंगे, साथ साथ आप भी करेंगे, उसके बाद हम अर्थ पढ़ाएंगे। आपका लेसन है रॉबर्ट ब्रूस was the king of Scotland. He was not a happy man now. His country was at war with England. Unfortunately, the English were winning in it. A number of battles has been fought between the two armies, but now, battles after battles, the English army was driving back the Scottish army. The situation had become so desperate that Bruce fled to the mountains. He was now cold, tired, and hungry. Nowhere to go for rest and recover. He walked through the mountains forest. He found an old abandoned wooden cottage. He decided to give his body at rest there. He entered it and lay down on the floor like a mango stone which had been sucked badly. He murmured to himself, "The enemy has beaten us badly 6 times. We have lost 100 of our best soldiers. We have no means to fight back. We are destined to loss. Our army is in disarray. It has no food and weapons to fight. It is I who have failed my soldiers. Everything is lost for me. My people will be taken slave. It is so horrible. I cannot bear it. I must flee away, never to return. I have no face to show my countrymen." He was tired to the last bone, and sleep was nowhere in his eyes. He was feeling guilty and restless. He wanted to close down his eyes, but was not able to do so. Hopelessly, he looked toward the ceiling. Suddenly, he caught a glimpse of a little grey spider. It was spinning a long thread from one of the beams. Bruce had nothing to think about. His mind was blank. In fact, he was able to think nothing. To deviate his attention from his poor condition, he started to peer at the spider that was still spinning its thread. The spider was at work. It wanted to make a cobweb. It made a long thread and swung on it in an effort to attach the other end of another beam. As it swung higher and higher and was about to touch the other beam, the thread was snapped. The spider fell down to the floor. Robert Bruce had sympathy for it. He remembered his first battle in which he had lost. He looked at it intently. However, the spider climbed up the wall and began spinning again. Bruce recalled how he had got ready to fight another battle after his first defeat. In the meanwhile, the spider swung on the thread again, but only to fall down. It sprang to its feet in no time, climbed up the wall, and started again. Bruce said to himself, "I too have fought the English 6 times. I can see my reflection in you, O little spider. Let me show how long you last." The spider fell to the floor once again, but it showed no sign of disappointment. It tried again and again. And now it was the 6th time. Bruce was keeping record. He said to himself, "I don't think the spider will have any more strength and courage to go for it once more."
but the spider was resolved to achieve its object. It rose back to its feet in no time. It belied his belief. It climbed up again and started to weave again, oblivious to the presence of the defeated king who was trying to identify himself with it. Bruce watched this little spider spellbound. He sat up and became so absorbed in it that he forgot his own troubles. It was the seventh time. The spider had not yet accepted defeat. It walked to the other end of the thread and started swinging. Higher and higher it went until it touched the other beam and fixed the thread there. As soon as it was done, it started to weave its cobweb actively. Bruce looked at the little spider with admiration. He exclaimed, "Wow, you little being, you have taught me a lesson of a lifetime. I would never forget the lesson you have taught." The spider was busy weaving its web. Bruce stood up and saluted the tiny spider. He was no more hopeless or tired. His face glowed with resolve. He picked up his sword from the floor and turned toward the door. Bruce was still cold, hungry, and tired, yet he was not discouraged now. As he stepped out of the cottage, he saw some soldiers who were in a bad condition, like him. He gathered them, motivated them, trained them, and equipped them. Then he fought his final battle. He led his country to victory in it. अब इसके बाद बच्चों आप लोग इस लेसन का अर्थ देखेंगे। अर्थ है आपका, रॉबर्ट ब्रूस वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। राजा ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस एक राजा का नाम था जो कि स्कॉटलैंड के राजा थे। रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड के राजा थे। ही वॉज नॉट हैप्पी मैन नाउ। हैप्पी मतलब खुश, नाउ मीन्स अब वह इस समय वह एक खुश राजा नहीं थे या खुशी नहीं थे। हिज कंट्री, उनका देश, वाज एट वार, युद्ध पर था विथ इंग्लैंड, इंग्लैंड के साथ। उनका देश इंग्लैंड के साथ युद्ध पर था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द इंग्लिश वर विनिंग, अंग्रेज जीत रहे थे, इन इट, इसमें यानी युद्ध में। दुर्भाग्यवश अंग्रेज इसमें जीत रहे थे। ए नंबर ऑफ बैटल्स हैड बीन फॉट, ए नंबर ऑफ मतलब ढेर सारे, बैटल्स मीन्स युद्ध, हैड बीन फॉट लड़े गए, बिटवीन बीच द टू आर्मीज दोनों सेनाओं के, दोनों सेनाओं के बीच कई युद्ध लड़े गए। बट नाउ, लेकिन अब, बैटल आफ्टर बैटल, युद्ध के बाद युद्ध, द इंग्लिश आर्मी वाज ड्राइविंग बैक, पर युद्ध करके द इंग्लिश आर्मी, अंग्रेजी सेना ने, वाज ड्राइविंग बैक, खदेड़ दिया या भगा दिया, द स्कॉटिश आर्मी, स्कॉटिश सेना को। युद्ध पर युद्ध करके, लेकिन अब युद्ध पर युद्ध करके अंग्रेजी सेना ने स्कॉटिश सेना को भगा दिया। द सिचुएशन हैड, सिचुएशन मीन्स परिस्थिति, हैड बिकम हो गई, सो डिस्परेट, इतनी निराशाजनक हो गई, स्थिति इतनी निराशाजनक थी, दैट कि राजा ब्रूस फ्लेड भाग गया टू द माउंटेन्स, पहाड़ों में। स्थिति इतनी खराब हो गई, इतनी निराशाजनक हो गई कि राजा ब्रूस पर्वतों की ओर भाग गया। ही वॉज नाउ कोल्ड, अब वह उस समय वह कोल्डनेस ठंडा था, टायर्ड भूखा था, टायर्ड थका हुआ था, एंड हंग्री और भूखा था। उस समय वह ठंडा, थका हुआ और भूखा था। नो वेयर टू गो फॉर रेस्ट, कहीं और, टू गो जाने के लिए, फॉर रेस्ट आराम के लिए, आराम करने के लिए, कहीं और ना जाकर, एंड रिकॉप और ताजगी के लिए या ताज़ापन के लिए, आराम और ताज़ापन के लिए कहीं और ना जाकर, ही वॉक्ड थ्रू द माउंटेनस फॉरेस्ट, माउंटेनस यानी पर्वतीय, फॉरेस्ट मीन्स जंगलों में,
ही वॉक्ड थ्रू द माउंटेनस फॉरेस्ट, वह पर्वतीय जंगलों में होकर चलता रहा। ही फाउंड एन ओल्ड एबंडेंड वुडन कॉटेज, ही फाउंड उसने पाया, एन ओल्ड एक पुरानी, एबंडेंड त्यागी हुई यानी जिसे छोड़ दिया गया था, वुडन लकड़ी की, कॉटेज मीन्स झोपड़ी। उसने एक त्यागी हुई लकड़ी की झोपड़ी को पाया। ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू गिव देने का, हिज बॉडी अपने शरीर को, ए रेस्ट आराम, देयर वहाँ यानी उस झोपड़ी में जाकर उसने वहाँ पर अपने शरीर को आराम देने का निश्चय किया। ही इंटर्ड इस, उसने गया झोपड़ी के अंदर गया, एंड ले डाउन और लेट गया, ऑन द फ्लोर फर्श पर, लाइक ए मैंगो स्टोन आम के गुठली की तरह। वह उसमें गया और फर्श पर एक आम के गुठली की तरह लेट गया, विच हैड बीन सक्ड बैडली जिसे बहुत बुरी तरीके से चूसा गया हो, यानी आम की गुठली को चूसा गया हो। उसी प्रकार से राजा ब्रूस भी वहाँ पर निराश होकर, असहाय होकर झोपड़ी में जाकर लेट गया। ही मरमर्ड मीन्स धीरे से कहना या बड़बड़ाना, टू हिमसेल्फ स्वयं से, उसने स्वयं से बड़बड़ा कर कहा या धीरे धीरे कहा। द एनिमी हैज़, एनिमी यानी शत्रुओं ने, हैज़ बीटन अस, बीटन मीन्स हराया, बीट मीन्स पीटना होता है, मारना, यहाँ होगा हराना। बीटन अस बैडली यानी शत्रुओं ने हमें बुरे तरीके से हराया, 6 टाइम्स 6 बार, शत्रुओं ने हमें 6 बार बहुत बुरे तरीके से हराया, पराजित किया। वी हैव लॉस्ट, हमने खो दिए, 100 ऑफ आवर बेस्ट सोल्जर्स, अपने सैकड़ों अच्छे सिपाही, हमने अपने सैकड़ों अच्छे सिपाही खो दिए। वी हैव नो मीन्स साधन यानी युद्ध करने का जो साधन होता है, टू फाइट बैक लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, हमारे पास, तो राजा ब्रूस स्वयं से सोच रहा है कि हमारे पास अब युद्ध करने के लिए कोई साधन भी नहीं है। वी आर डिस्टाइंड टू लॉस, हमारे भाग में, डिस्टाइंड मतलब भाग्य में लिख दिया गया है, टू लॉस पराजित होना या हानि झेलना, हमारे भाग्य में पराजित होना लिखा गया है। आवर आर्मी इज इन डिजायरी, डिजायरी में होता है तितर बितर होना या बिखर जाना, हमारी सेना बिखर गई है। इट हैज़ नो फूड, इट मीन्स सेना के लिए कहा गया है, इट हैज़ नो फूड सेना के पास भोजन नहीं है, एंड वीपन्स और हथियार नहीं है, टू फाइट लड़ने के लिए, सेना के पास ना तो भोजन है और ना ही लड़ने के लिए उनके पास हथियार है। इट इज़ आई, यह मैं ही हूँ, राजा स्वयं से कह रहा है, इट इज़ आई, यह मैं ही हूँ, हु हैव फेल्ड, जिसने पराजित किया है, माई पीपुल अपनी जनता को, अपने प्रजा को, या मैं ही हूँ जिसने अपनी प्रजा को पराजित किया है। एवरीथिंग इज लॉस्ट फॉर मी, सब कुछ, एवरीथिंग में सब कुछ, इज लॉस्ट बर्बाद हो चुका है, खो चुका है, फॉर मी मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए बर्बाद हो चुका है। माई पीपुल विल बी टेकन स्लेव, मेरे लोगों को, विल बी टेकन बना लिया जाएगा, स्लेव मीन्स दास, मेरे लोगों को, मेरी प्रजा को दास बना लिया जाएगा। इट इज़ सो हॉरिबल, यह कितना भयानक है। आई कैन नॉट बियर इट, बियर में सहन करना, मैं इसे सह नहीं सकता हूँ। आई मस्ट फ्ली अवे, मैं भाग जाता हूँ, नेवर टू रिटर्न यानी कभी ना लौटने के लिए, राजा स्वयं से कह रहा है कि मैं कभी ना लौटने के लिए भागा हूँ। आई हैव नो फेस यानी मेरा चेहरा अब ऐसा नहीं रहा, टू शो जिसे मैं दिखा सकूं, माई कंट्रीमैन अपने देशवासियों को, यानी मेरे पास अपने देशवासियों को दिखाने लायक चेहरा नहीं रहा है। ही वॉज टायर्ड टू द लास्ट बोन, लास्ट बोन मतलब बहुत ज़्यादा, ही वॉज टायर्ड वह थका हुआ था, वह बहुत अधिक थका हुआ था, एट फिर भी, स्लीप वॉज नो वेयर नींद कहीं भी नहीं थी, इन हिज आइज उसकी आँखों में, वह बहुत ज़्यादा थका हुआ था लेकिन नींद उसकी आँखों में कहीं नहीं थी। ही वॉज फीलिंग वह एहसास कर रहा था, गिल्टी अपराध का, एंड रेस्टलेस और बेचैनी का, उसे अपराध करने और बेचैनी का एहसास हो रहा था। ही वांटेड वह चाहता था, टू क्लोज डाउन हिज आइज अपनी आँखें बंद करना, वह अपनी आँखें बंद करना चाहता था,
लेकिन was not able to do so, लेकिन वह ऐसा करने के योग्य नहीं था, यानी वह अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता था। Hopelessly, निराश होकर, he looked, उसने देखा, towards, की ओर, the ceiling is छत का जो निचला हिस्सा होता है जहाँ से फैन लटकाए जाते हैं। तो hopelessly he looked towards the ceiling, निराश होकर उसने छत के निचले हिस्से की ओर देखा। Suddenly, अचानक, he caught a glimpse, caught a glimpse मतलब होता है झलक, of a little, एक छोटी, grey मीन्स भूरी, spider मीन्स मकड़ी। अचानक उसने एक छोटी भूरी मकड़ी को देखा, मकड़ी की एक झलक देखी। इट वाज स्पाइनिंग, वह बुन रही थी, स्पाइनिंग मीन्स होता है बुनना। ए लॉन्ग थ्रेड, एक लंबा धागा, फ्रॉम वन ऑफ द बीम्स, एक कड़ी से, बीम यानी जो छत को बनाने के लिए जो पिलर बनाए जाते हैं, खंभे बनाए जाते हैं, उसे बीम कहा जाता है। इट वाज स्पाइनिंग अ लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम वन ऑफ द बीम्स, वह एक बीम से एक लंबा धागा बुन रही थी। ब्रूस हैड नथिंग टू थिंक अबाउट इट, ब्रूस इसके बारे में कुछ भी सोच नहीं सकता था, यानी जब उसने मकड़ी को बुनते हुए देखा तब भी उसके मन में उसे देखकर कुछ विचार नहीं आए। हिज माइंड वॉज ब्लैंक, हिज माइंड उसका दिमाग वॉज ब्लैंक, खाली था, यानी उसके दिमाग में कोई भी सोच उस समय नहीं थी, उसका दिमाग खाली था। इनफैक्ट, वास्तव में, ही वॉज एबल टू थिंक नथिंग, ही वॉज एबल, वह योग्य था, टू थिंक, सोचने के, नथिंग, कुछ भी, वास्तव में वह कुछ भी न सोचने के योग्य था, यानी उस समय वह कुछ भी नहीं सोच सकता था। टू डेविएट हिज अटेंशन फ्रॉम हिज पुअर कंडीशन, डेविएट मतलब दूसरी ओर करना या हटाना, हिज अटेंशन अपना ध्यान, फ्रॉम हिज पुअर कंडीशन अपनी खराब दशा से, उसने अपनी खराब दशा से अपना ध्यान हटाने के लिए, ही स्टार्टेड टू पियर, उसने, पियर मीन्स झांकना या देखना, एट द स्पाइडर, उसने मकड़ी की ओर देखना शुरू किया, दैट वाज स्टिल स्पाइनिंग इट्स थ्रेड्स, जो कि अभी भी अपना धागा बुन रही थी या अपना जाल बुन रही थी। द स्पाइडर वाज एट वर्क, मकड़ी अपने काम पर लगी थी। इट वांटेड टू मेक अ कॉब वेब, वह एक, कॉब वेब मीन्स होता है जाल, मकड़ी का जो जाल बना होता है, वह अपना जाल बनाना चाहती थी। इट मेड अ लॉन्ग थ्रेड, उसने, मकड़ी ने मेड बनाया, ए लॉन्ग थ्रेड, एक लंबा धागा, एंड स्वंग ऑन इट, और उस पर जो उसने धागा बनाया था उसको लेकर झूली, इन एन एफर्ट, प्रयास किया, झूल कर उसने प्रयास किया, टू अटैच्ड, छूने का, द अदर एंड ऑफ एनदर बीम, दूसरे बीम के दूसरे किनारे को, पहले किनारे पर तो वह थी जहाँ से वह जाल बुन रही थी, तो दूसरे बीम के दूसरे किनारे को उसने छूने का प्रयास किया। उसने एक लंबा धागा बनाया और उस धागे को पकड़कर झूलने का प्रयास करके उसने दूसरे कड़ी के दूसरे किनारे को छूने का प्रयास किया। एज इट स्वंग हायर एंड हायर, और जैसे ही वह ऊंचाइयों पर झूली, एंड वाज अबाउट टू टच, वाज अबाउट टू मीन्स होता है लगभग, टू टच, छूने के, द अदर बीम, दूसरी बीम को, और जैसे ही वह दूसरे बीम को छूने के करीब थी या छूने के योग्य हो सकी, द थ्रेड वाज स्नैप्ड, धागा टूट गया। मकड़ी जो उसने धागा बुना था उसको लेकर ऊंचाइयों पर झूली और वह दूसरी कड़ी को छूने ही वाली थी कि धागा टूट गया। द स्पाइडर फेल डाउन द फ्लोर, मकड़ी फर्श पर गिर गई। रॉबर्ट ब्रूस हैड सिंपैथी फॉर इट, सिंपैथी में सहानुभूति या दया, राजा ब्रूस को उस पर दया आ गई। ही रिमेम्बर्ड, उसे याद आ गया, राजा ब्रूस को याद आया, हिज फर्स्ट बैटल, अपना प्रथम युद्ध, इन विच, जिसमें ही हैड लास्ट, वह पराजित हुआ था। राजा ब्रूस को अपना पहला युद्ध याद आया जिसमें वह पराजित हुआ था। ही लुक्ड एट इट इंटेंटली, ही लुक्ड, उसने देखा, एट इट, उसकी ओर यानी मकड़ी की ओर, इंटेंटली, निष्ठापूर्वक, उसने मकड़ी की ओर निष्ठापूर्वक देखा।
हाउएवर फिर भी द स्पाइडर क्लाइंब्ड अप द वॉल। मकड़ी दीवार पर चढ़ी एंड बिगेन स्पाइनिंग अगेन, और फिर उसने बुनना शुरू कर दिया। ब्रूस रिकॉर्ड ब्रूस ने याद किया, रिकॉल मीन्स याद करना। हाउ किस प्रकार, ही हैड गॉट रेडी वह तैयार हुआ था, टू फाइट युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए, एनदर बैटल दूसरा युद्ध, आफ्टर हिज फर्स्ट डिफीट अपनी पहली पराजय के बाद। राजा ब्रूस ने याद किया कि किस प्रकार वह अपनी पहली पराजय के बाद दूसरा युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुआ था। इन द मेन वाइल इसी बीच, द स्पाइडर स्वंग ऑन द थ्रेड अगेन मकड़ी अपने धागे पर, जो जाल बनाने के लिए धागा था, उसको लेकर पुनः झूली, बट ओनली टू फॉल डाउन लेकिन वह गिर गई। इट स्प्रैंग टू इट्स फीट इन नो टाइम स्प्रैंग में होता है खड़ा होना, टू इट्स फीट वह अपने पैरों पर खड़ी हुई, नो टाइम थोड़े ही समय में, वह थोड़े ही समय में अपने पैरों को फैलाकर खड़ी हुई। क्लाइंब्ड अप द वॉल दीवार पर चढ़ी, एंड स्टार्टेड अगेन और उसने फिर अपना काम शुरू कर दिया। ब्रूस सेड टू हिमसेल्फ ब्रूस ने स्वयं से कहा, आई टू हैव फाट मैंने भी लड़ाई की थी। द इंग्लिश अंग्रेजों से 6 टाइम्स 6 बार मैंने भी 6 बार अंग्रेजों से लड़ाई की, युद्ध किया। आई कैन सी मैं देख सकता हूँ, माई रिफ्लेक्शन अपना प्रतिबिंब, अपनी प्रतिछाया, इन यू तुझ में, ओ लिटिल स्पाइडर हे छोटी मकड़ी। तो राजा ने अपने मन ही मन उस मकड़ी को संबोधित करके कहा कि हे छोटी मकड़ी, मैं तुम में अपनी प्रतिछाया को देख सकता हूँ। लेट मी सी मुझे देखने दो, हाउ लॉन्ग कब तक, यू लास्ट तुम बनी रहती हो, मुझे देखने दो कि कब तक तुम बनी रहती हो या कब तक तुम अपना कार्य जारी रखती हो। द स्पाइडर फेल टू द फ्लोर वंस अगेन मकड़ी एक बार फिर फर्श पर गिर गई, बट लेकिन इट शोव्ड उसने दिखाया, नो साइन कोई संकेत नहीं दिखाया, ऑफ डिसअपॉइंटमेंट निराशा का, लेकिन उसने निराशा का कोई संकेत नहीं दिखाया। इट ट्राइड अगेन एंड अगेन उसने बार बार प्रयास किया, एंड नाउ और अब, इट वॉज द 6th टाइम यह 6ठी बार था। ब्रूस वॉज कीपिंग रिकॉर्ड ब्रूस आंकड़ा रख रहा था या आंकड़ा बना रहा था। ही सेड टू हिमसेल्फ उसने स्वयं से कहा, आई डोंट थिंक मैं नहीं सोचता हूँ या मेरा नहीं मानना है, द स्पाइडर विल हैव एनी मोर स्ट्रेंथ कि मकड़ी में अब कोई शक्ति बची है। स्ट्रेंथ में शक्ति, मैं सोचता हूँ कि अब मकड़ी में शक्ति नहीं बची है, एंड करेज और साहस नहीं बचा है, टू गो फॉर इट वंस मोर एक बार फिर इसे करने का, टू गो फॉर करना, इस काम को करना। तो राजा ने स्वयं से कहा, सोचा कि मैं नहीं सोचता हूँ कि अब मकड़ी में इतनी शक्ति और इतना साहस बचा है कि वह इसे एक बार फिर कर सके या एक बार फिर वह जाला बनाने का प्रयास कर सके। बट द स्पाइडर वॉज रिजॉल्व में होता है दृढ़ होना, लेकिन मकड़ी अपने लक्ष्य पर दृढ़ थी, टू अचीव प्राप्त करने के लिए, हिज ऑब्जेक्टिव अपना लक्ष्य अपना उद्देश्य, लेकिन मकड़ी अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ थी। इट रोज बैक वह उठी, रोज राइज की सेकेंड फॉर्म है, राइज में होता है उठना या निकलना। इट रोज बैक इट्स फीट इन नो टाइम वह अपने पैरों पर थोड़े ही समय में खड़ी हुई। इट बिलाइड हिज बिलीफ वह अपने विश्वास पर अड़ी रही। इट क्लाइम्ड अप अगेन वह पुनः चढ़ी, दीवार पर चढ़ी, एंड स्टार्टेड टू वीव अगेन और उसने फिर जाल बुनना शुरू कर दिया। ऑब्लिवियस टू द प्रेजेंस, ऑब्लिवियस में होता है अनजान होकर, टू द प्रेजेंस उपस्थिति से, ऑफ द डिफीटेड किंग पराजित राजा की उपस्थिति से अनजान होकर वह अपना जाल बुनना उसने शुरू कर दिया। हु, अब हु शब्द जो है वो राजा की ओर संकेत कर रहा है। यदि वाज ट्राइंग प्रयास कर रहा था, टू आइडेंटिफाई पहचानने का, हिमसेल्फ स्वयं को, विथ इट इससे यानी मकड़ी से। तो मकड़ी पराजित राजा की उपस्थिति से अनजान होकर
उसने जाल बुनना शुरू किया, जो कि यानी राजा, जो पराजित राजा था, वॉज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ इट, जो कि इससे यानी मकड़ी से अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा था। ब्रूस वॉच्ड दिस लिटिल स्पाइडर स्पेल बाउंड। ब्रूस ने स्पेल बाउंड मीन्स मंत्र मुग्ध होकर यानी बहुत ही लगन से, राजा ब्रूस ने उस मकड़ी की ओर बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर देखा। ही सैट अप, वह बैठ गया, एंड बिकेम सो एब्जॉर्ड इन इट, और उसमें एब्जॉर्ड मीन्स होता है घुल जाना या व्यस्त हो जाना, और वह उसमें यानी मकड़ी को देखने में इतना लीन हो गया, इतना व्यस्त हो गया, दैट ही फॉरगॉट हिज ओन ट्रबल्स। फॉरगॉट मीन्स भूल जाना, ओन मीन्स अपना स्वयं का, कि वह अपना स्वयं का ही कष्ट वह भुला दिया। वह उठकर बैठ गया और मकड़ी को देखने में इतना अधिक व्यस्त हो गया कि उसे अपना ही कष्ट याद ना रहा। इट वॉज द 7th टाइम, यह 7वीं बार था। द स्पाइडर हैड नॉट एट एक्सेप्टेड डिफीट, मकड़ी ने हैड नॉट एट, अभी नहीं, एट मीन्स अभी, एक्सेप्टेड स्वीकार किया था, डिफीट पराजय, मकड़ी ने अभी भी अपनी पराजय स्वीकार नहीं की। इट वॉक्ड टू द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, वह धागे के दूसरे किनारे पर गई, एंड स्टार्टेड स्विंगिंग, और उसे लेकर उसने झूलना शुरू किया। हायर एंड हायर इट वेंट, वह ऊंचाई और ऊंचाई पर गई, अंटिल इट टच्ड द अदर बीम, जब तक कि उसने दूसरे बीम को छू ना लिया, एंड फिक्स्ड द थ्रेड देयर, और वहाँ पर अपने धागे को उसने वहाँ पर चिपका ना दिया, तब तक वह झूलती रही। एज सून एज इट वॉज डन, जैसे ही यह हो गया, यानी उसने दूसरे बीम पर जाकर अपने धागे को चिपकाया, ये होने के बाद इट स्टार्टेड टू वीव इट्स कॉबवेब, उसने शुरू कर दिया, वीव मीन्स बुनना, इट्स कॉबवेब, अपना जाल एक्टिवली सक्रियता से, और जैसे ही उसने यह कर लिया, उसने अपना जाल बहुत ही सक्रियता से बुनना शुरू कर दिया। ब्रूस लुक्ड एट द लिटिल स्पाइडर विथ एडमायरेशन, एडमायरेशन मीन्स होता है प्रसन्नता, प्रशंसा की भावना से। ब्रूस लुक्ड एट द लिटिल स्पाइडर, ब्रूस ने छोटी मकड़ी की ओर विथ एडमायरेशन, प्रशंसा की भावना के साथ देखा। ब्रूस ने मकड़ी की ओर प्रशंसा की भावना से देखा। ही एक्सक्लेम्ड, उसने विस्मय से कहा, वाह यू लिटिल स्पिंग, अरे वाह तुम छोटी प्राणी, यू हैव टॉट मी अ लेसन, तुमने मुझे एक शिक्षा दी ऑफ अ लाइफ टाइम, जीवन भर के लिए, तुमने मुझे जीवन भर के लिए एक शिक्षा दी है। आई वुड नेवर फॉरगेट द लेसन, मैं उस शिक्षा को कभी नहीं भूलूंगा। यू हैव टॉट, जो तुमने मुझे सिखाया, जो शिक्षा तुमने मुझे दी, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। द स्पाइडर वॉज बिजी वीविंग इट्स वेब, मकड़ी अपने जाल को बुनने में व्यस्त थी। ब्रूट स्टूड अप, ब्रूस खड़ा हुआ, एंड सैल्यूटेड, और उसने सलाम किया, द टाइनी स्पाइडर, छोटी मकड़ी को। ब्रूस खड़ा हुआ और उसने छोटी मकड़ी को सलाम किया। ही वॉज नो मोर होपलेस और टायर्ड, नो मोर मीन्स नहीं था, जरा भी नहीं था, होपलेस निराश, और टायर्ड या थका हुआ, वह निराश या थका हुआ, वह अब निराश या थका हुआ नहीं था, या वह अब जरा भी निराश नहीं था और थका हुआ नहीं था। हिज फेस, उसका चेहरा, ग्लोड, चमक रहा था, विज रिजॉल्व, दृढ़ता से, अपने दृढ़ निश्चय से, उसका चेहरा दृढ़ता से, अपने दृढ़ निश्चय से चमक रहा था। ही पिक्ड हिज स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार। ही पिक्ड अप, उसने उठाया, हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार, फ्रॉम द फ्लोर, फर्श से, उसने अपनी तलवार फर्श से उठाई, एंड टर्न्ड टुवार्ड्स द डोर, और दरवाजे की ओर मुड़ा, झोपड़ी का जो दरवाज़ा था उसकी ओर वह मुड़ा। ब्रूस वाज स्टिल कोल्ड, हंग्री एंड टायर्ड, ब्रूस अभी भी ठंडा, भूखा और थका हुआ था। एट, फिर भी, ही वॉज नॉट डिस्करेज नाउ, अब वह हतोत्साहित नहीं था। एज ही स्टेप्ड आउट, स्टेप मीन्स होता है बाहर कदम रखना, ऑफ द केज, कॉटेज, जैसे ही उसने झोपड़ी के बाहर कदम रखा, ही सॉ, उसने देखा, सम सोल्जर्स,
कुछ सिपाहियों को देखा हु वर इन ए बैड कंडीशन, जो बुरी दशा में थे। जैसे ही उसने झोपड़ी से बाहर कदम रखा, उसने देखा कि उसके कुछ सिपाही बुरी अवस्था में वहाँ पर थे। लाइक हिम, उसकी तरह, यानी राजा की तरह। उसने देखा कि उसकी तरह सिपाही वहाँ बुरी अवस्था में पड़े थे। ही गेथर्ड देम, गेथर्ड मीन्स एकत्रित करना, देम मीन्स उन्हें, यानी अपने सिपाहियों को। उसने उन्हें एकत्रित किया। मोटिवेटेड देम, मोटिवेट मीन्स होता है उन्हें प्रेरित करना, उन्हें प्रेरित किया। ट्रेंड देम, उन्हें कुछ देर के लिए प्रशिक्षित किया या उन्हें शिक्षा दी। एक्विप्ड देम, और उन्हें सुसज्जित किया। ही गेथर्ड देम, मोटिवेटेड देम, ट्रेंड देम एंड एक्विप्ड देम। उसने उन्हें एकत्रित किया, उन्हें उत्साहित किया, उन्हें प्रशिक्षित किया और उन्हें सुसज्जित किया। देन ही फाट हिज फाइनल बैटल, तब उसने अपना अंतिम युद्ध लड़ा। ही लेड हिज कंट्री, उसने अपने देश को दिलाया टू विक्ट्री इन इट, उसने इसमें अपने देश को विजय दिलाई।